Okay, so we just give some time to time. Okay, we must give some time to the time, so that the time will return the time to us in a particular time. Okay, so use mask, use sanitizer, wash your hands properly, stay at home, stay safe. Again, I'm saying about the KTSE exam. In my previous class, I have already told you the KTSE is going to be conducted on 23rd May. Okay, before 2 days, you are allowed to give a mock test of that KTSE pattern. Okay, so Sir, yes, sir, what is the mark? Sir, full mark? everything will be messaged you, informed you by our mentors. Okay, so they will call you and they will inform you all about this. Okay, Okay, sir. सो चैप्टर शुरू करते हैं. सो पिछले चैप्टर में हम क्या क्या पढ़े थे, पहले उसको डिस्कशन कर लेते हैं. क्या क्या पढ़े थे हम, what have we discussed, क्या क्या पढ़े थे हम. पहले तो पढ़ा था क्या है केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री. सो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम क्या क्या पढ़ा था. स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, these are the three states of matter that we have: solid, liquid and gas generally. So solids are those substances where the packing is maximum, the packing is strong or very close packing, and they are loosely bonded or loosely packed, and the order of packing is solid greater than liquid greater than gas. Okay, so solid on heating converts to liquid, so liquid on heating converts to gas. Again, gas on cooling converts to liquid, and a liquid on cooling converts to solid. Okay, again we have also discussed the density, about density. So density of solid is more than that of the liquid, it is more than that of the gas. Okay, these are the things that we have discussed in our previous classes, is not it? ये तो पढ़ा था ना हमने. Yes, sir. Okay, so if this is the thing, then let's discuss some questions. I will ask you 3 questions. Okay, and you have to answer it. Okay, my first question: solid has gas, fixed shape, fixed volume, both of these and none of these. Both of this. Both of Everyone, these. does solid possess a fixed shape? Yes. Does solid possess a fixed volume? Yes. Yes. So the answer will be A and B. That means here both A and Both. B are in a single option, that is both A and B. Okay, my second question: the intermolecular forces of attraction among the gas molecule is. Question: the intermolecular forces of attraction among the gas molecule is. पहले वाला strong, weak, the third one very weak, fourth one none of Sir, these. very big. Very weak. Why? Very weak. My question is why? Why are you saying that the intermolecular force is very weak? Why? Because you know that the force, intermolecular force of attraction is inversely proportional to what? The distance of separation. Is not it? So in gas molecules, the packing is very less, so that the distance of separation between the two gas molecule is very high. Okay, as the distance of separation between the gas molecule is higher, so that the intermolecular force of attraction will be minimum. So in gas, the distance will be maximum, so that the intermolecular force is very weak. So the answer will be very weak. Okay, you all are correct. Now it's my third question and last question. The states of matter depends on temperature, pressure, both temperature and pressure, none of this. इसको थोड़ा समझ के आंसर. both temperature and pressure. Temperature and pressure.
So how does depend upon pressure? How pressure is dependent? Do you know how pressure is dependent? You know that solid था, इसको मैंने टेम्परेचर दे दिया, ये लिक्विड हो गया. अब आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विड ओनली. सो यहाँ पर लिक्विड था, लिक्विड के बारे में बहुत अच्छे से मालूम होगा. लिक्विड, यहाँ पर गैस. ओके, सो यू आर गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो लिक्विड गैस हो गया. ओके, सो गैस में यहाँ से टेम्परेचर को थोड़ा कम कर लिया, कूल कर लिया गैस को. ओके, टेम्परेचर रिड्यूस्ड so that gas converts to liquid. So how pressure affects? यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? प्रेशर का रोल क्या होगा? बच्चों बातों को समझो. अगर प्रेशर ना होगा, यहाँ पर गैस, यहाँ पर लिक्विड का मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत हाई होता है एक दूसरे से. अगर इसको हम प्रेशर दे दें, यहाँ पर कोई प्रेशर ऐड करें, तो गैस मॉलिक्यूल क्लोजर आ जाएगा. दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर एंड दे विल acquire the configuration of liquid particles. That means gas, on application of an increase on pressure, the gas converts to liquid, and by losing the pressure, the liquid converts to gas. You are using perfume, is not it? So in liquid, this is at high pressure, the gases. Please, can you please mute yourself? Okay. So यहाँ पर तो गैस का यहाँ पर liquid gas, sorry, these are the liquids of the gases. So whenever you lose the pressure, it will be again the liquid converts to gas. That means on decrease with pressure, liquid converts to gases, and with increase in pressure, gas converts to liquid. So the change in state or the states of matter also depends upon the pressure and to the temperature. So the A and B both are correct. So the answer C is the correct answer. Okay, are you getting my point? Yes sir. Okay. Yes, So sir. second class शुरू करूं? Yes, sir. So just welcome to my second class of states of matter. Okay, so आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में. So ये बात मुझे बताओ कि मेजरेबल का मतलब क्या होता है? मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो आपको मालूम है, मेजरेबल का मतलब क्या होता है? आपको बताना है, मुझे नहीं बताना. आपको सब कुछ मालूम है. जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं. हाँ, जिस चीज को हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि मास को हम मेजर कर सकते हैं क्या? मास को हम मेजर कर सकते हैं? Yes. कैसे? आपने सपोज आपने दुकान में गए, आपको आलू लाना था. आपने पूछा कि भैया मुझे 1 kg आलू दे दो. ओके, और इतना आपने डाला लाया, आलू भरा, उसको दे दिया कि वेट मशीन पे डाल दो. कितना आया यहाँ पर वेट? 1 kg. सो इसका यूनिट है ना 1 kg वाला यूनिट. सो दिस kg indicates that the concept of a mass, that is the measurable quantity of the mass, that is the measurement of mass. Okay, so here 1 kg, 2 kg, 3 kg, everything, this is a variable quantity, but the kg here, this is the only fixed quantity which represents the weight of a substance or the mass of a substance. Okay, so similarly 1 gram, kg. Okay, so these are the units which represents the measurable characteristic of a substance that indicates the mass of the substance. Okay, वैसे ही अगर मैं ये बात बोलूं कि कोई और मेजरेबल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना है. So क्या I am asking for the second question. Does volume behaves as a measurable property? क्या वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं? Yes, sir. ओके, मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम को लीटर में, मिलीलीटर में, लीटर में, मिलीलीटर में.
ओके, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में, मीटर का क्यूब में. ओके, so these are the units by which we can measure the volume. Okay, so volume is also a measurable property. Okay, आपको ये हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है. दुकान जाते हैं और कहते हैं 1 लीटर का मस्टर्ड ऑयल देना और 2 लीटर का मुझको सनफ्लावर ऑयल देना और कोई 250 ग्राम का और 250 ml का मुझको रिफाइंड ऑयल चाहिए. ओके, तो जो भी चाहिए, पेट्रोल में 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, 4 लीटर पेट्रोल चाहिए. ओके, सो ये जो चीज हम लीटर में, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज ए मेजरेबल प्रॉपर्टी. ओके, सो वैसे ही एक और मेजरेबल प्रॉपर्टी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज व्हिच वी यूज रेगुलरली. टेम्परेचर, सो टेम्परेचर कैसे मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गया? आजकल के कोविड के टाइम में सबसे बड़ा मेजरेबल प्रॉपर्टी होता है टेम्परेचर, क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाओगे वो आपसे पूछेगा कितना बुखार था, व्हाट इज द डिग्री ऑफ योर टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर क्या था. आपको बोलना है कि मेरा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट था और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो भी आपका टेम्परेचर था. ओके, सो आपको ये बोलना है, सो इतना मेरा इतना टेम्परेचर था, इतना टेम्परेचर था, मैंने थर्मोमीटर डाला था अपने मुंह में तो इतना टेम्परेचर आया था, मैंने अपने तो या मेरा तो टेम्परेचर इतना आया था. ओके, सो ये जो यूनिट होता है, जिसका पास ये जो यूनिट होता है मेजरिंग करने का, मेजर करने का यूनिट होता है, उसको हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं. ओके, सो द मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज टू व्हिच वी कैन मेजर. ओके, सो वैसे गैस मॉलिक्यूल का भी कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, सो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं. सो व्हाट आर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस? ओके, सो गैस का कौन कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे हम गैस को नाप सकते हैं? ओके, सो द पहला वाला प्रॉपर्टी होता है मास. ओके, सो एक करके हम डिसाइड करेंगे, तो उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं. ओके, सो द दूसरा वाला जो आया था उसको हम कहेंगे वॉल्यूम, एंड द थर्ड वन इज प्रेशर, the fourth one is temperature, the fifth one is density, and the sixth one is diffusion. Okay, so हमारा पास 1 2 3 4 5 and 6, there are 6 measurable properties of gases that we have to discuss. Okay, the first one is mass. Okay, so let's discuss what is mass of a substance. Okay, so before going to the mass of the substance, ओके, जस्ट यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बोलना चाहता हूँ. सपोज दिस इज ए बॉक्स, इट इज ए, व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज ए बॉक्स. ओके, सो सपोज द बॉक्स, इस बॉक्स का वेट था और मास था W1. कितना था इसका मास? W1 था. ओके, सो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ये एम्प्टी था. ओके, कुछ भी नहीं था यहाँ पर. ओके, मैंने क्या किया, ये इस बॉक्स में मैंने कुछ ऐड कर दी. क्या ऐड कर दूं? कुछ गैस का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड कर दूं. यहाँ पे ये वाला इतना सारा गैस का मॉलिक्यूल मैंने ऐड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम हो गया सपोज W2. सो मुझको ये पूछना है कि आपसे कि यहाँ पे W1 और W2 क्या वो सेम है या W1 इज नॉट इक्वल टू W2 है? सर इस सेम दोनों से होगा. क्या होगा? सर क्या वो W1 not equal to W2. सर Okay. सेम होगा क्योंकि पहले सेम होगा, W1 विल बी इक्वल टू W2. नहीं सर, सर क्योंकि एम्प्टी बॉक्स में भी अगर तो ये एयर हो होगा ना. जाएगा तो इतना तो पता चल जाएगा कि गैस का कोई मास ही नहीं है. गैस का कोई मास ही नहीं है. दैट मीन्स गैस जिसका मास नहीं होता वो मैटर ही नहीं होता. तो पहले से मैंने आपको बोला था, बार बार याद रखने को, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग. Matter is defined as anything which has mass and available space. So इसका पास मास नहीं होगा तो ये मैटर कैसे होगा? अगर ये मैटर नहीं होगा तो स्टेट में कैसे आएगा? मैटर का स्टेट में कैसे आएगा ये? ओके, सर सो एम्प्टी बॉक्स में भी तो एयर होगा. it is empty. Empty means it is vacuum. That is, there is no gas molecules here. This is purely vacuum. Okay, empty means there is purely vacuum. I have not asked about any type of gas molecules here. I have just added some gas molecules here. Okay,
I have mentioned it. I have added some gas molecules, okay, to this container. So here W1 Okay, sir. is equal to W2. ये पूरा wrong answer होगा. So if W1 is not equal to W, then दो chances आता है यहाँ पर. Either W1 is greater than W2 or W1 is less than W2. So फिर से इन दोनों में से कौन सा सही होगा? W1 W2 से ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा? W1 is less than Sir, W2. W1 Yes. less than W2. You can W1 is less than W2. yes, W1 is less than W2 क्योंकि इसमें सिर्फ बॉक्स का मास है. यहाँ पर W2 is equal to mass of the box plus the mass of the gases enclosed in it. Is not it? So the extra mass is due to the mass of the gases. Is not it? So here we can say that the gas molecules possess some mass. Okay, as they are a states of matter. Okay, so as the gas molecules are the states of matter, they are the constituent particles of matter, so that they can possess some mass, and hence the W1 is not equal to W2 and W2 is greater than W1. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत छोटे छोटे बात कर रहा हूं, आपको ये बात को ध्यान में रखना है. ओके, बहुत छोटे छोटे बात कर रहा हूं. छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से ही हमारा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से. ओके, तो हार्ड वर्क का जमाना गया. अभी हमको स्मार्ट वर्क भी नहीं करना चाहिए, हमको स्मार्टली हार्ड वर्क करना चाहिए. सो ये जो गैस का मॉलिक्यूल होता है, गैस का मॉलिक्यूल को हम एक्सप्रेस कैसे करें, उसका मास कैसे मेजर करें. मेरे पास अगर कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा तो मैं उसको डायरेक्टली वेट कर लूंगा, तो बोलूंगा कि इतना ही मेरा मास होगा. तो गैस को कैसे वेट करूंगा? ओके, सो डेफिनेटली द गैस मॉलिक्यूल, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. सो उसका काउंट करना भी हमारे पास मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा. सो हाउ टू काउंट द गैस मॉलिक्यूल्स फर्स्ट? सो बाय using the help of moles. Okay, so students, do you know what is mole? What is mole? Do you know? क्या आपको मालूम है कि मोल क्या है? No, sir. नहीं Mole मालूम is a ना? constant. No, sir. Okay, so just I will explain it. Okay, so listen carefully to me. It is very important thing. What is a mole? Okay, so whenever you are going to the market and buying some banana or rasgulla, or sorry, banana or eggs. Okay, so suppose my favorite is egg, so I will give an example of egg. Okay, so मैंने मार्केट गया और उनसे पूछा कि भैया मुझको 1 डजन का एग चाहिए. ओके, 1 डजन का एग चाहिए. सो वो मुझे कितना एग देगा? 12. कितना एग देगा? Sir, 12. 12. There he will give me 12 eggs. Is not it? So Yes, मैंने दुकान में गया, मैंने पूछा कि भैया मुझे 1 पेयर शूज देना. ओके, तो कितना शूज देगा मुझे? 2 शूज देगा, क्योंकि पेयर का मतलब 2 होता है और द डजन का मतलब 12 होता है. तो वैसे ही ये तो छोटे छोटे, ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, ये सबसे छोटा नंबर है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है. सो जब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर का मतलब 6.022 10 to the power 23, ये इतना बड़ा नंबर आ जाएगा अगर, तो इसको हम बोलेंगे 1 मोल. सो 1 मोल का मतलब क्या हुआ? 6.022 10 to the power 23. इतना सारा मॉलिक्यूल होता है और इतना सारा नंबर होता है. ओके, सो अगर मैं पूछूं तो 1 मोल हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना हाइड्रोजन होगा? और एक से बात करूं, सो अगर मैं पूछूं 1 मोल एग विल बी इक्वल टू कितना सारा एग? यस, अगर आपने गलती से भी दुकान में चले गए और पूछ दिया कि भैया मुझे तो 1 मोल का एग चाहिए, सो अगर वो पूरा ब्रह्मांड छान मारेगा और आपके लिए एग कलेक्ट करेगा तो वो भी कम पड़ जाएगा. हाँ या नहीं? सो 1 मोल Yes, एग का sir. मतलब क्या होता है यहाँ पर? सो 1 मोल का एग का मतलब एग ही होता है. एग का मतलब तो कुछ और नहीं हो सकता.
सो 1 मोल का मतलब होता है, 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 10 to the power 23, इसका 1 मोल का मतलब ये होता है। सो 1 मोल एग मींस इतना सारा एग। ओके, सो बच्चों एक और सवाल। ओके, आई नो यू नो एवरीथिंग, जस्ट आई एम हियर टू रिमेंबर यू। ओके, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू योर नॉलेज, you know everything, I'm not saying anything, you know everything। okay, so suppose ये एक बॉल है, ये दूसरा वाला बॉल है, ये तीसरा बॉल है, ये चौथा बॉल है। okay, so all the balls are same, so इसका मास भी suppose इसका मास 10 ग्राम है, इसका मास भी 10 ग्राम, इसका मास भी 10 ग्राम, इसका मास भी होगा 10 ग्राम। ओके, सो व्हाट इज द, सो ये चारों बॉक्स, ये चारों बॉल को मैंने एक साथ मेजर किया, वेट किया। ओके, वेट मशीन में डाला, सो टोटल वेट कितना आएगा? व्हाट इज द 40 टोटल ग्राम। वेट? टोटल वेट आएगा 40 कितना? ग्राम। 10 40 एक 10 into 4, there are 4 balls and each ball possess a mass of 10 gram, so that means 40 gram, is not it? so ये 10 क्या होगा? ये 10 का मतलब है mass of one ball into number of balls, हाँ या नहीं? 4 का मतलब क्या है यहाँ पर? 4 का मतलब नंबर ऑफ बॉल्स, इज नॉट इट? तो वैसे ही मैंने अगर आपको पूछ लिया यहाँ पर कि 1 मोल, सपोज 1 मोल H2 गैस का मास कितना होगा, तो कैसे मालूम करें? H2 का मास क्या होगा? हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है आपको मालूम है? हाइड्रोजन का मास नंबर 1, so there are 2 hydrogen molecule, so 1 plus 1 is equal to 2, that means the mass of 1 H2 molecule is equal to 2, हाँ या नहीं? so कितना सारा मोलेकुल है यहाँ पर? 1 मोल का मोलेकुल, so 1 मोल का मतलब 6.023 sorry 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ H2 का मास कितना होगा? फॉर्मूला क्या आया था? नंबर ऑफ मास ऑफ वन एटम और मास ऑफ वन बॉल, सो हियर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज 2 एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर? इतना सारा मॉलिक्यूल होता है 6.022 10 to the power 23, इतना सारा मास होगा। ओके, एक का मास इतना है और इतना सारा मास का इतना है। ओके, समझ में आ गया? सो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ द 1 मोल का मास आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया बात? यस सर। सो ऐसे ही तो गैस का मास कैसे निकालते हैं आपको मालूम हो गया? तो मोल कोई बड़ी चीज नहीं है, मोल भी एक नंबर है। ओके, सो मोल के बारे में थोड़ा और बातें करता हूं, आपको फिर से समझ में आ जाए विस्तार में। ओके, सो 1 मोल, तो ये तो हम तो गैस को काउंट तो नहीं कर सकते, इतना सारा गैस मॉलिक्यूल को हम काउंट तो नहीं कर सकते ना। तो जनरली हाउ कैन वी मेजर, हाउ कैन वी रिलेट मोल टू वेट? डायरेक्ट मोल को हम वेट के साथ कंपेयर करेंगे। सो याद रखना बच्चों, इट इज ए फॉर्मूला, द नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता हूं n पर, गिवन मास को रिप्रेजेंट करता हूं w पर, एंड गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता हूं m पर। सो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू w बाई m। ये फॉर्मूला आपको जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर नहीं लेकिन जब तक आपको पढ़ाई करना है तब तक याद रखना है। ओके, सो कहीं भी चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, ये आपको नहीं छोड़ने वाला। रिसर्च में जाओ या मेडिसिन फील्ड में जाओ या किसी भी फील्ड में जाओ, n इज इक्वल टू w बाई m, इसको आपको याद रखना है। ओके, सो W क्या होता है? गिवन मास, मैंने कितना मास में लूं वेट करके, दिस इज अ प्रैक्टिकल मास, प्रैक्टिकली मैं कितना मास लूं। ओके, जैसे कि जिसके वजह से n मोल का सब्सटेंस आ जाएगा। एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, इससे आपको बात समझ में आ जाएगा। ओके, सो हाउ कैन यू
take 1 mole sodium hydroxide metal, sorry, sodium hydroxide pellet, sorry, ओके. सो मुझको 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, तो मैं कैसे लूं? सो हियर कितना मोल लेना है मुझको? 1 मोल. सो हियर n इज इक्वल टू 1. सो क्या लेना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. ओके, तो कितना ग्राम लेने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, W कितना लेने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल 1 मोल आएगा, उसको हम निकालना है. तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमको कैलकुलेशन करना है. सोडियम का मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास मींस द समेशन ऑफ द मास नंबर्स. तो सोडियम का मास नंबर कितना आएगा? 23. ऑक्सीजन का आएगा 16 एंड हाइड्रोजन का आएगा 1. सो इसको हम ऐड करें तो कितना आएगा? धीरे धीरे 40. सो दैट मींस इट इज 40. ओके, सो वी नो दैट n इज इक्वल टू W बाई m. सो n कितना आया था? 1. W को कैलकुलेशन करना है, so m is equal to 40. So that implies here W will be equal to 40. Okay, अगर मैं 40 ग्राम का NaOH लूं तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल NaOH हो जाएगा. ओके, बात आ गया समझ में? यस सर. ओके, ठीक है. तो sir. ठीक है. सो वैसे ही एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आंसर देना. हाउ मेनी, सॉरी, व्हाट्स द वेट, व्हाट इज द weight of 2 moles of NH3 एमोनिया गैस. ये गैस है ना, एमोनिया गैस है. तो आपको पूछना था सर, अब तो सॉलिड के बारे में बताया, गैस के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको दुख होता होगा. सो इसलिए मैंने दूसरा क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर. ओके, सो थोड़ा दुख दूर हो जाए. सो व्हाट इज द वेट ऑफ द 2 मोल ऑफ NH3. तो मुझको 2 मोल दे रखा है यहाँ पर. ओके, 2 मोल का वेट निकालना है. तो कितना होगा इसका वेट? 2 मोल का वेट कितना आएगा? क्या कोई मुझे बोल सकता है कि 2 मोल का वेट कितना आएगा? सर 34 kg. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. So 52 gram. ओके, लेट्स सॉल्व इट. ओके, सो NH3 कितना मोल चाहिए मुझे? N इज इक्वल टू 2 हियर, एंड मुझको W तो निकालना है. अगर यहाँ पर M कितना है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 14. सर एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर आएगा 14. एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर आएगा 14. ओके, सो हाइड्रोजन का 1. सो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, सो इसलिए 3. सो मास नंबर आ गया 17. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ammonia is 17. So that's why we know that N is equal to W by M. That means N का वैल्यू कितना था यहाँ पर? 2 is equal to W by M कितना? W equal to Mn. So W is equal to 2 into 17. That means 34. And the term, the unit is always expressed in terms of a gram. Okay, so all W in terms of a gram. Okay, इसको हम याद रखना है. ठीक है, सो कितना वेट आएगा? 34 का. ओके, सो 2 मोल अमोनिया का वेट कितना आएगा? 34 ग्राम. आ गया बात समझ में? Yes, आ sir. गया बात समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, So sir. again I will just look at the slide and revise yourself. So 1 डजन का मतलब कितना था? 12. सो आपको क्या, आप अगर 1 डजन केले लाना है तो आपको 12 ही केले लाना पड़ेगा. ओके, सो 1 मोल का मतलब कितना होगा यहाँ पर? 6.022 10 to the power 23. अगर कुछ बुक्स में ये भी लिखा है 6.023 into 10 to the power 23. ओके, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज अप्रोक्सीमेटली सेम है. ओके, दे आर नॉट डिफरेंट एट ऑल. ओके, दे आर सेम. ये वैल्यू भी करेक्ट है, ये वैल्यू भी करेक्ट है. ओके, देन 1 डजन ऑफ बनाना मींस 12 banana. So 1 mole of banana means 6.022 10 to the power 23 number of banana. Is not it?
Similarly, 1 mole of NaCl means 6.022 10 to the power 23 number of क्या होगा NaCl, हाँ या नहीं? अरे हाँ Yes, या sir. नहीं? Yes, sir. तो इसको बताओ 1 मोल सोडियम एसीटेट का मतलब कितना होगा? कितना सोडियम एसीटेट आएगा? 6.022 into 10 to the power 23. 23 सोडियम एसीटेट, क्या सोडियम एसीटेट। Sodium acid. सोडियम एसीटेट एक मॉलिक्यूल है, ओके, सोडियम एसीटेट एक मॉलिक्यूल है। सो सिमिलरली 1 मोल ऑफ EDTA, EDTA एक ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका नाम है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, ओके। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम 12th में पढ़ेंगे। EDTA का एक कॉम्प्लेक्स होता है, आपको याद रखना है वहां पर, ओके। सो सोडियम एसीटेट EDTA के बारे में हम 12th में बात करेंगे, ओके। सो अभी आपको ये याद रखना है, ये एक मॉलिक्यूल होता है। सो ये एक छोटा मॉलिक्यूल, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल, ये सबसे बड़ा मॉलिक्यूल। सो 1 मोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितना आएगा? वही 6.022 10 to the power 23 ही आएगा। इतना सारा EDTA मॉलिक्यूल आएगा, ओके। यस, आर यू क्लियर? Yes, sir. Yes, ओके, sir. ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पर वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी वॉल्यूम कैसे एक मेजरेबल प्रॉपर्टी हो सकता है? क्योंकि वॉल्यूम का पास कुछ स्पेस होता है ना, वॉल्यूम मतलब कुछ स्पेस होता है। सो सपोज यहाँ पर ये गैस का वॉल्यूम था यहाँ पर। सो गैस का क्या वॉल्यूम होगा? सो यू नो दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू the volume of the container, the volume of Yes. container. So container का वॉल्यूम जो होगा वही वॉल्यूम कितना किसका आएगा? का गैस का मॉलिक्यूल का आएगा। सपोज इसका वॉल्यूम था V1, ओके ओके, और सपोज 1 लीटर का वॉल्यूम था यहाँ पर। सो ये जो गैस का मॉलिक्यूल थोड़ा कंप्रेस होकर थोड़ा कम वॉल्यूम है यहाँ पर, तो गैस का वॉल्यूम कितना आएगा? वही 1 लीटर ही आएगा। अगर मैं वॉल्यूम थोड़ा एक्सपांड कर लूं तो गैस मॉलिक्यूल भी अपने आप में एक्सपांड हो जाएगा। ये वाला गैस मॉलिक्यूल इधर उधर बिखरने लगेगा। सो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? अभी उसका वॉल्यूम 2 लीटर हो गया। सो गैस का वॉल्यूम, गैस के पास कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, दैट इज वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज वेरिएबल विद द वेरिएंस ऑफ द कंटेनर। सो कंटेनर अगर छोटा होगा तो वॉल्यूम भी छोटा आएगा, तो कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा। सो गैस का ये वाला कंटेनर, इसका पास वॉल्यूम कम था, इस कंटेनर का वॉल्यूम कम था, हाँ या नहीं? इस कंटेनर का वॉल्यूम कम था, सो इसलिए गैस का वॉल्यूम भी कम था, ओके। सो इस कंटेनर का वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो गैस का वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया, ओके। बात समझ में आ गया? सो Yes, sir. so these are the units. So volume is तो वॉल्यूम हैज ए पर्टिकुलर यूनिट। सो क्या यूनिट होता है वॉल्यूम का? लीटर। SI यूनिट में क्या होगा वॉल्यूम का यूनिट? मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब का मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो ये तीनों मीटर में, 1 मीटर में होगा, ओके। सो इंटरनेशनल यूनिट क्या होगा इसका? मीटर क्यूब, ओके। सो यहाँ पर दोनों चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मीटर में ना लेकर यहाँ पे मैं डेसीमीटर में ले लूं, ओके। तो सपोज दिस इज ए क्यूब, आई एम टॉकिंग अबाउट ए क्यूब, ओके। ये क्यूब है। सो ये क्यूब में कितना एटम्स, ये क्यूब में लेंथ होता है सपोज 1 डेसीमीटर, ये लेंथ है। 1 डेसीमीटर ब्रेथ होता है यहाँ पर, एंड 1 डेसीमीटर का हाइट है, ओके। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब? ये क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, वही 1 डेसीमीटर। सो दैट मीन्स 1 डेसीमीटर क्यूब, इज नॉट इट? सो इतना वॉल्यूम आएगा, ओके। सो वॉल्यूम आ जाएगा 1 डेसीमीटर क्यूब। सो ये यहाँ पर जो लिक्विड था 1 डेसीमीटर क्यूब में, ये इसमें जो लिक्विड था, इसको मैं अगर एक मेजरिंग सिलेंडर में डाल दूं, मेजरिंग सिलेंडर मतलब ये 1 लीटर, ये 2 लीटर, 3 लीटर, ये लीटर में मेजर करता है, ओके। सो उसका वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा? 1 लीटर तक, ओके। सो वी कैन से दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ओके, इज नॉट इट? सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1 लीटर का। ये बात आपको याद रहेगा,
हमेशा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ये याद रहेगा क्या? Yes, अगर sir. Yes. Yes, अगर sir. यहाँ से मैं डेसीमीटर हटा दूं, यहाँ से मैं डेसीमीटर निकाल दूं, डेसीमीटर का जगह मैं सेंटीमीटर लिख दूं, ये भी लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीनों 1 सेंटीमीटर हो गया अभी। ओके, सो कितना हो गया? लेंथ ब्रेथ हाइट कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। सो 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर हाइट हो गया। ओके, सो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? कितना आएगा इसका वॉल्यूम? 1 सेंटीमीटर into 1 centimeter into 1 centimeter, so that means 1 centimeter cube, 1 centimeter क्यूब का मतलब होता है 1 ml। so यहाँ पे जो मेजरिंग सिलेंडर में अगर मैं इसको डाल दूं मेजरिंग सिलेंडर में तो कितना आएगा? ओनली 1 ml आएगा। ओके, सो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो क्या इसे याद रखेंगे आप? Yes, sir. ओके, so ठीक है। so again I am here writing here the conversions of the units। तो 1 decimeter cube is equal to 10 to the power 3 centimeter cube, 1 meter is equal to 10 decimeter, again 1 meter is equal to 10 decimeter, so 1 meter cube कितना आएगा? 10 to the power 3 decimeter cube, is not it? that means 10 to the power 3 decimeter cube, so 10 to the power 3 decimeter cube, you know that 1 decimeter cube is equal to 1 liter, so 10 to the power 3 decimeter cube will be equal to 10 to the power 3 liter, that means 1000 लीटर आ जाएगा। ओके, तो वैसे ही 10 to the power यहाँ पर 1 मीटर 1 डेसीमीटर क्यूब कितना आएगा? 1 डेसीमीटर, ये यहाँ पर 10 to the power 3 यहाँ पर था, इसको इस तरफ ले आया, इस तरफ ले आया हूं तो कितना होगा? 10 to the power 1 by 10 to the 3 हो जाएगा, जिसका मतलब है 10 to the power -3, so 10 to the power -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। क्या आई बात समझ में? तो देखो Yes, sir. ये छोटी-छोटी कन्वर्सन होता है यहाँ पर। ओके ओके, वैसे ही 1 मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे लिखा था मैंने ना 1 मीटर क्यूब इक्वल 10 to the 3 डेसीमीटर क्यूब। डू यू नो 1 डेसीमीटर is equal to 10 centimeter। okay, so 1 decimeter cube will be equal to 10 centimeter का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। 10 centimeter का क्यूब कितना आएगा? 10 to the power 3 centimeter cube, and you know that a centimeter cube, you know that the centimeter cube 1 centimeter cube is equal to 1 ml, so 10 to the 3 centimeter cube is equal to 10 to the power 3 ml। okay, so क्या आ जाएगा? 10 to the power 3 into 10 to the 3 centimeter cube, that means 10 to the power 6 centimeter cube, is not it? so आ जाएगा 10 to the power 6 centimeter cube, और इसको मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 10 to the 6 centimeter cube को क्या लिख सकता हूं? ml, so कितना आएगा? 10 to the power 6 ml। ओके, आई बात समझ में? सो वैसे ही सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझको मीटर में एक्सप्रेस करना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना मीटर हो जाएगा? यहाँ पर 10 to the power 6 यहाँ पर था, यहाँ पर चला जाएगा तो 10 to the power -6 हो जाएगा, तो 10 to the power -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आई बात समझ में? ये कोई बड़ी चीज नहीं है, यस वही चीज है, मैं इसको घुमा फिरा कर आपसे यूनिट का कन्वर्सन सिर्फ करा रहा हूं। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं इसको इरेज कर दूं? Yes, Yes, sir. sir. बस सर। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? तो यू नो दैट प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, हाँ या नहीं? तो यहाँ पर जो कंटेनर था, ये कंटेनर का वॉल है। ओके, ये गैस का मॉलिक्यूल है। तो पहले तो मैंने प्रूव किया कि गैस का पास कुछ मास होता है। ओके, तो मास होगा तो गैस तो मूव करता है, तो एक्सेलरेशन भी होगा, हाँ या नहीं? तो मास इंटू एक्सेलरेशन मींस फोर्स होता है गैस के पास। तो गैस के पास वो एक पर्टिकुलर, एवरी गैस मॉलिक्यूल पोजेस ए पर्टिकुलर फोर्स, और सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स। जब वही फोर्स वॉल में एग्जर्ट होगा, दैट मींस ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस एरिया, देन दैट रेशियो इज कॉल्ड एज प्रेशर। Did you understand? So
गैस के पास मास है, उसके पास एक्सेलरेशन भी है, सो इसीलिए मास इनटू एक्सेलरेशन, वी नो दैट F इज इक्वल टू मा एम ए, हाँ या नहीं? मास का मतलब m का मतलब मास, a का मतलब एक्सेलरेशन, तो F का मतलब होता है फोर्स, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर किसी के पास मास है और उसके पास एक्सेलरेशन भी है, सो वी कैन से दैट उसके पास फोर्स भी है, हाँ या नहीं? ये बेसिक फिजिक्स का चीज है बच्चों, ओके, सो यू नो इट। तो प्रेशर, इसको ये इसका रेशियो को हम क्या कहते हैं? फोर्स और एरिया को रेशियो को हम प्रेशर कहते हैं, ओके। तो गैस के पास मास है और उसके पास एक्सेलरेशन है, तो उसके पास फोर्स है। जब वही फोर्स उसका कंटेनर में उसका सरफेस में आकर इंपैक्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे प्रेशर। दैट मींस गैस एक्सर्ट प्रेशर, सो हिटिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज इक्वल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द कंटेनर बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, ओके। सो गैस का मॉलिक्यूल कंटेनर में प्रेशर एक्सर्ट करता है, ओके। सो दिस इज द barometer or the manometer by which we can measure the pressure, okay। so यहाँ पर जीरो में था, मर्क्यूरी का लेवल यहाँ पर जीरो में था, यहाँ पर मर्क्यूरी भरा हुआ है, इसका मर्क्यूरी का लेवल जीरो में था, ओके। तो जब भी कोई इसका ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो इसका ऊपर प्रेशर आएगा, तो मर्क्यूरी का लेवल जीरो से ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये ऊपर उठता जाएगा, प्रेशर फिर से ऊपर उठा, बढ़ा, ये फिर से ऊपर उठा। जब ये वैल्यू 760 में 760 मिलीमीटर में या 76 सेंटीमीटर में आके रुके, तो इसको हम कहेंगे 1 एटमॉस्फेयर। सो दैट मिनिमम प्रेशर, that pressure by which the mercury level moves from 0 to 760 millimeter or 76 centimeter is called 1 atmosphere pressure। so क्या आपको बात समझ में आ गया? तो कैसे हम मेजर करते हैं 1 एटमॉस्फेयर को? तो 1 एटमॉस्फेयर मींस 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहाँ पर एक बात लिख दूं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेवल, जिसको हम फिर से बोल सकते हैं कि और 70-60 मिलीमीटर ऑफ Hg लेवल, ये दोनों 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है या मालूम पड़ा? मालूम था या मालूम पड़ा? सर। ओके, सो ये आपको ये बात को ध्यान में रखना है और जिंदगी भर याद रखना है, ओके। सो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज और 77-60 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो ऐसे ही हम प्रेशर मेजर करते हैं, ओके। सो इसको इरेज करता हूं। सो 1 एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। फिर से लिख दूं, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। सो यू नो दैट P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। P का यूनिट, प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर में होगा या बार में होगा। तो यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, इसके बारे में मैं बात कर चुका हूं पहले से, फोर्स पर एरिया। यहाँ पर फोर्स का यूनिट कितना क्या होगा? यू नो दैट एक साइंटिस्ट था न्यूटन, अकॉर्डिंग टू द नेम द फोर्स, द यूनिट ऑफ द फोर्स is according to his name, that means फोर्स का यूनिट क्या आएगा? न्यूटन। तो एरिया का यूनिट क्या आएगा? एरिया का यूनिट मीटर इनटू मीटर, दैट मींस मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर का यूनिट कितना आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। सो इसको हम पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम पास्कल भी कहते हैं। तो कितना यूनिट आया? देखो मैं यहाँ पर राउंड करता हूँ, ये वाला एक यूनिट एटमॉस्फेयर, एक यूनिट बार, एक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट, एंड पास्कल इज अनदर यूनिट, ओके। तो आया बात समझ में? तो प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर कितना पास्कल होगा? इतना पास्कल, 1.0325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ओके, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस आया समझ में? सो प्रेशर इज इक्वल टू 1.01325 10 टू द पावर 5, ओके। यहाँ पर पास्कल को अगर मैं किलो पास्कल में कन्वर्ट कर दूं, यू नो दैट 1 किलो इज इक्वल टू 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल, क्योंकि किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, है या नहीं? सो स्टैंडर्ड यूनिट से कुछ भी 1 किलोमीटर 10 टू द 3 मीटर, तो वैसे ही 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 पास्कल, ओके। तो यहाँ पर 1 पास्कल कितना आएगा? तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 टू द 3 इस साइड आ जाएगा, सो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 किलो पास्कल, हाँ या नहीं?
तो यहाँ पर 10 to the power 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 10 to the power 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू, इसका वैल्यू किलो पास्कल में आ जाएगा या नहीं? ओके तो प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किया, एटमॉस्फेयर में लिया, एटमॉस्फेयर को पास्कल में कन्वर्ट कर सकता हूं, पास्कल को किलो पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। अगेन इसको थोड़ा सॉल्व कर दूं, 10 to the power 2 आ जाएगा। 10 to the power 2 का मतलब देखो 1.01325 इंटू 10 to the power 5 इंटू -3 क्या आ जाएगा? 10 to the power 2। 10 to the power 2 का मतलब 100 का मल्टीप्लाई करना है, दैट मींस पॉइंट को 2 पॉइंट्स राइट साइड में लेना है। 101.325 इतना आएगा इसका वैल्यू। सो आ गया 101.325 किलो पास्कल। ओके सो अगेन प्रेशर इज इक्वल टू 1 atmosphere is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इज नॉट इट? और इसको हम 760 मिलीमीटर ऑफ Hg में भी पढ़ते हैं। ओके तो इसको यहाँ पर एक छोटी सी बात और ऐड कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं टॉर। तो ये बात याद रखो बच्चों, 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। ओके तो मर्क्यूरी का लेवल 0 से 1 में गया, तो यहाँ पर प्रेशर कितना ऐड हुआ? 1 टॉर का प्रेशर अप्लाई हुआ। तो 1 से 2 में गया, यहाँ पर फिर से 1 टॉर का प्रेशर अप्लाई हुआ। 2 से 3 में गया, यहाँ से फिर से 1 टॉर का प्रेशर अप्लाई हुआ। ओके तो प्रेशर का ये टॉर वाला यूनिट क्या होता है? ये वाला यूनिट होता है 1 मिलीमीटर ऑफ Hg मूव करने में जितना प्रेशर लगता है उसको हम टॉर कहते हैं। ओके सो टॉर होता है सबसे छोटा यूनिट जो 1 mm ऑफ Hg को एक्सप्लेन करता है। ओके सो प्रेशर का 1, सो यहाँ पर मैंने लिख लिया 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 टॉर। ओके सो आगे ये स्लाइड आपको समझ में आ गया? क्या ये स्लाइड आपको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट देन यू कैन। Yes, sir. ओके सो इरेज करता हूं और दूसरे स्लाइड में चलता हूं। सो मेजरेबल प्रॉपर्टीज, तो थर्ड मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा? टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। ओके सो देखो डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री था, तो यहाँ पर कुछ डाटा में लिख रहा हूं, मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ डाटा लिख रहा हूं। डिग्री सेंटीग्रेड का जब 0 में था तो केल्विन का वैल्यू था 273। जब यहाँ पर टेम्परेचर 100 हो गया तो इसका वैल्यू 373 हो गया। जब इसका वैल्यू 200 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू 473 हो गया। ओके जब इसका वैल्यू मैंने बहुत कम सेंटीग्रेड का माइनस में ले लिया, -273 कर लिया, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला था डिग्री सेंटीग्रेड के स्केल में, ये वाला था हमारा केल्विन के स्केल में। ओके सो यहाँ पर जो रिलेशन आपको दिख रहा है वो रिलेशन क्या है? इज नॉट इट डिग्री सेंटीग्रेड में ओके सपोज x डिग्री सेंटीग्रेड था, x डिग्री सेंटीग्रेड में अगर मैं 200 यहाँ पर 273 का ऐड कर लूं, ओके सो कितना हो जाएगा? यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड विल कन्वर्ट टू केल्विन, केल्विन स्केल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 0 में 0 था, यहाँ पर 273 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा या नहीं? 100 में 273 ऐड कर लो, 373 केल्विन हो जाएगा या नहीं? यहाँ पर 273 का ऐड कर लो, 22473 हो जाएगा या नहीं? तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड था, सेंटीग्रेड में जब भी 273 का यूनिट ऐड करता हूं तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या ये सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके सो मैं आगे Yes, आगे sir. बढ़ूं Yes, या sir. कोई और दिक्कत है यहाँ पर? नहीं देखो सर, ये कोई वाला दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको बोल सर ये यहाँ पर तो आपने अत्याचार ही कर लिया, इन तीनों के बारे में बोला, इनके बारे में कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पर 273 था, ऐड करा 273, तो कितना कैंसिल आउट हो जाएगा या नहीं? तो 0 हो जाएगा। यस सो चलो चलते हैं दूसरे स्लाइड पर। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? थर्मोमीटर, इज नॉट इट? सो थर्मोमीटर का काम क्या है? ये कि ये टेम्परेचर को मेजर करेगा। ओके सो द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर द टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। सो केल्विन को स्केल में, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ऐसे ही। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो टी केल्विन सेंटीग्रेड में अगर 2 से 273 का ऐड कर लूं तो डिग्री सेंटीग्रेड विल बी कन्वर्टेड टू केल्विन। ओके वैसे ही एक अनदर यूनिट होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, रेगुलरली यूज्ड यूनिट। सो फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करें? तो डिग्री सेंटीग्रेड
को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। तो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 F - 32। ओके, तो ये फॉर्मूला, इधर ये फॉर्मूला याद रखो, एक ही फॉर्मूला याद रखना है। तो सेंटीग्रेड में इसको भी हम डायरेक्टली सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट। सो सेंटीग्रेड मालूम है तो फ़ारेनहाइट को ऐसे ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक और दूसरा वाला फॉर्मूला, ये कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं, इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव है। तो यहाँ से मैं 5/9 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हुआ, 9/5 इंटू सी हो गया इज इक्वल टू F - 32। सो यहाँ से F कितना आ जाएगा, यहाँ पे 32 आकर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 9c/5 प्लस 32। सो 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ओके, सो कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला हो या ये वाला हो, एक वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 F - 32 और F फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको याद रह जाए तो वही बहुत अच्छा होगा। ओके, सो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो बच्चों आज आपको आज शाम में 5:30 पर आपका एक कैरियर काउंसलिंग एग्जाम, सॉरी कैरियर काउंसलिंग और आपका सीसीपी का प्लान ये होगा, प्रोग्राम होगा। सो हमारा एक एक्सपर्ट जो है आपको कुछ सेमिनार डिलीवर करेंगे आपको, तो आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे अपने फ्यूचर के बारे में जान पाओगे। ओके, यहाँ से कैसे आप पढ़ाई करोगे, आपका जो भी चीज आपका दिमाग में चल रहा है, जो भी क्वेश्चन आपका दिमाग में आ रहा है, किसी को आप बता नहीं सकते, किसी को हम पूछ नहीं सकते। ओके, सो वो वही उसी चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ओके, सो शाम में रेडी रहना। सो लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। सो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है या नहीं। तो डेंसिटी का मास का यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट आएगा केजी पे, एंड वॉल्यूम का यूनिट किस में आएगा, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यू में। सो केजी पर मीटर क्यू इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। ओके, सो एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यू। ओके, तो नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। तो डेंसिटी का मतलब डेंसिटी का ये जो डेंसिटी चीज है, ये क्या, ये आपको समझ में आ गया। डेंसिटी ये कोई बड़ी चीज नहीं है, एक सिंपल सी चीज है डेंसिटी। इसको आपको ये वैल्यू सिर्फ याद रखना है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यू। सो डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यू। ओके, सो क्या ये बात आपको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, Yes, So, sir. let's go for the diffusion. So do you know what is a diffusion? So suppose in a container I have two gases A and B. Okay, so A का स्पीड है V1, B का स्पीड है V2। तो A यहाँ पे V1 का स्पीड में मूव करेगा तो B अपना V2 के स्पीड में मूव करेगा। Okay, and here the main चीज is A and B they are non reacting with each other. That means A B के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा और B A के साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। Only they will move here and there like boats. So यहाँ पर A भूतों के तरह इधर उधर घूमेगा, B भी भूतों की तरह इधर उधर घूमेगा। ओके, चुड़ैल की तरह इधर उधर घूमेगा। ओके, सो यहाँ पर जो घूमने का टेंडेंसी होता है, मूव करने का टेंडेंसी होता है, इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ पर ग्रेविटेशन का कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा गैस के ऊपर। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स द गैस मॉलिक्यूल कैन मूव हियर एंड देयर रैपिडली in a particular in all the particular directions. So this phenomenon is known as diffusion. So यहाँ पर मैंने लिखा है the free intermixing of two or more gases without the gravitational effort is known as डिफ्यूजन। ओके, सो आपने परफ्यूम लिया, परफ्यूम को स्प्रे करा, तो परफ्यूम ने सिर्फ आप ये बोलोगे मैं तो परफ्यूम अपने शर्ट पे लगा रहा हूं तो वो क्यों स्मेल, उसको क्यों स्मेल जा रहा है, उसके नाम में क्यों स्मेल जा रहा है, ये आप कह नहीं सकते क्योंकि गैस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो गैस डिफ्यूजन होगा, यहाँ गैस डिफ्यूज होगा तो आपके पास दूसरों के पास चला जाएगा। खुशबू कभी एक खुशबू या बदबू को छुपाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके पास डिफ्यूजन है। ओके, सो हाउ डू यू नो व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का रेट क्या होगा, तो डिफ्यूजन का रेट तो वही होगा कि कितना वॉल्यूम के गैस यहाँ से डिफ्यूज हुआ है, कितने वक्त में, कितने कम वक्त में कितना ज्यादा वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ है, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। सो वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड और द टाइम टेकन ऑफ द डिफ्यूजन इज
known as the rate of diffusion. Okay, so rate वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? सपोज वॉल्यूम को v लिख लिया और टाइम के लिए टी लिख लिया, सो वॉल्यूम का यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा या डेसीमीटर क्यूब, आइदर ml, आइदर हम इसको ml में रिप्रेजेंट करेंगे या लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, मिलीलीटर में, लीटर में। तो कितना एक सेकंड में कितना ml का वॉल्यूम डिफ्यूज होता है और एक सेकंड में कितना लीटर का वॉल्यूम डिफ्यूज होता है, ओके, मूव करता है, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। कैन यू प्लीज म्यूट द ऑडियो? ओके, ठीक है, तो जब भी मैं बात करूं, मुझसे बात करना है, तभी ऑडियो का ऑन करो, ओके। सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स? Yes, sir. क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूं आपसे? सो पहला वाला सवाल है ये कि 1 मोल कितना आएगा? वेरी इजी क्वेश्चन, आपके पास चारों ऑप्शन है, यू हैव टू करेक्ट द राइट आंसर। 1 मोल का वैल्यू कितना आएगा? Sir, B. Option. वेरी इजी, इट इज Sir, वेरी option इजी, B. क्योंकि आपको मालूम है 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रोस का नंबर, हाँ या नहीं? दिस इज द एवोगाड्रोस नंबर व्हिच इज 6.022 10 to the power 23, ओके, ठीक है। देन 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, इसको याद रखना, क्या इसका वैल्यू क्या, कौन सा वैल्यू सही होगा? कौन सा वैल्यू सही होगा इसका? जी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल दीज थिंग्स आर सेम, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर 1 बार का बराबर होता है, 10 to the power 5 पास्कल का बराबर होता है, इसका बराबर होता है, ये इसका बराबर होता है, ओके, तो ये इसका बराबर होता है 101 10 1 पास्कल न्यूटन, पास्कल जितना आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इतना आएगा, यहाँ पर किलो पास्कल में आएगा तो 10 to the -3 ऐड हो जाएगा, है या नहीं? तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ऑल द थिंग्स आर सेम, ओके, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। कौन बोल रहा था? So 3 4 5 6 7 all these things are correct, नावे को आंसर करने दो, उसे बता ले बहुत नोट। okay, I'm not getting the point. Sir, This is a sound हो Newton, रहा है कुछ। यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या आपको सुनाई दे रहा है या नहीं? यस सर। Yes, Okay. sir. So Yes, sir. सो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में। तो प्रेशर और वॉल्यूम को मैंने चेंज करता हूं जब भी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो उसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो प्रेशर को कांस्टेंट लेकर जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन करते हैं उसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो जब वॉल्यूम को कांस्टेंट लेकर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वेरिएशन करते हैं उसको हम गैलो-सैक्स लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो वहां पर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। ओके, तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा नीट का क्वेश्चन भी करेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जेईई का क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर बॉयल्स लॉ। सो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा द मेजरेबल प्रॉपर्टीज के बारे में, हाँ या नहीं? तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? ओके, जो द 6 थिंग्स दे आर द मेजरेबल प्रॉपर्टी: मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, डिफ्यूजन। ओके, सो दीज आर द measurable properties of the temperature, these are the measurable properties of the substances. Okay, so सबका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, इंटर कन्वर्सन कैसे होगा, इसके बारे में हमने बात किया। ओके, सो आज का क्लास में किसी का कोई दिक्कत है क्या? किसी से परेशानी, कोई किसी चीज को लेकर, किसी कॉन्सेप्ट से लेकर? नहीं सर, नहीं सर। नहीं क्या सर। बात आपको क्लियरली समझ में आ गया? क्लास मजा आया? जी सर। यस सर, मजा आया। ओके, सो थैंक यू मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, आपको अशेष धन्यवाद। ओके, सो ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में पहले से मैं बोला था एक बार, आज भी बोल रहा हूं कि यू हैव टू कोऑपरेट विथ मी एंड आई हैव टू कोऑपरेट विथ यू। ओके, हम एक दूसरे के साथ बहुत लंबे जा सकते हैं। ओके, अगर आपने मेरे साथ छोड़ दिया और मैंने आपका साथ छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं हो सकता। ओके, यू एंड मी will make the world. Okay, so again, Yes, sir. thank you and see you in my next class.
Thank you, sir. थैंक यू सर